Students, this online class is for BSc IT SEM 6th student. The paper number is BITC 14. The paper name is Advanced Web Programming. In today's online class, we are going to study about .NET, .NET languages. So let's get into it. So first of all, what is .NET? .NET is a framework that provides a programming guidelines that can be used to develop a wide range of applications, from web applications to mobile application as well as Windows based application. .NET क्या है? एक फ्रेमवर्क है. फ्रेमवर्क मतलब जहाँ पे हम लोग कोई दूसरा लैंग्वेजेस यूज़ करके वेब ऐप डेवलप कर सकते हैं, मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं या विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं. सो द .NET फ्रेमवर्क वर्क्स with several programming languages, means we can develop mobile based or Windows based application in .NET using different languages such as C Sharp or VB.NET or C++ or F Sharp, etc. So .NET is a free cross-platform open source developer platform for building many different types of application. .NET क्या है? ये एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है. ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म क्या होता है? जहाँ पे यूज़र मॉडिफाई कर सकते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को या फ्रेमवर्क को खुद से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म. सो .NET इज़ अ open source and it is a platform dependent framework or language. So .NET includes a large class library called framework class library जिसे FCL बोलते हैं, and provides language interoperability. Interoperability means each language can use code written in other languages across several programming languages. So programs written for .NET framework can execute in a environment named as CLR, Common Language Runtime. .NET में दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है. एक है FCL, that is Framework Class Library, and second is the CLR, that is Common Language Runtime. One thing to note here is .NET is a platform dependent language. जावा क्या था? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज था. लेकिन यहाँ पे .NET क्या है? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है बिकॉज ऑफ द .NET फ्रेमवर्क विच इज़ ओनली एबल टू रन ऑन विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. .NET फ्रेमवर्क जो है सिर्फ विंडोज़ बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करेगा. Okay, the CLR, Common Language Runtime, is an application virtual machine. Virtual machine का मतलब क्या है? जो एग्जिस्ट तो करता है लेकिन एक्चुअल में वो एक मशीन वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वर्चुअल है. दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज सच एज सिक्योरिटी, मेमोरी मैनेजमेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. एक्सेप्शन मीन्स एरर जो होता है उसको हैंडल करने का काम करेगा. सो कंप्यूटर कोड रिटेन यूजिंग .NET फ्रेमवर्क इज कॉल्ड मैनेज कोड. जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे .NET फ्रेमवर्क में उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेज्ड कोड. FCL एंड CLR टुगेदर कंस्टिट्यूट द .NET फ्रेमवर्क. FCL और CLR दोनों को मिला के ही हमारा .NET फ्रेमवर्क बनता है. जैसे कि नीचे अभी डायग्राम में देखो, .NET फ्रेमवर्क, FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी प्लस कॉमन लैंग्वेज रन टाइम
प्लस जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करेंगे डेवलप करने में, वो मिलके हमारा टोटल क्या बनता है, डॉट नेट फ्रेमवर्क बनेगा. Now, what are the different languages supported by .NET? So, first is the C Sharp. Is a simple, modern, object-oriented and type-safe programming language. C Sharp क्या है? Is a object-oriented programming language है, जहाँ पे object and class का use होता है. C Sharp roots in the C family of languages makes C Sharp immediately familiar to C, C++, Java and JavaScript programmers. क्योंकि C Sharp जो है वो C लैंग्वेज के ही मेंबर है, इसलिए जिसे अगर हम लोग C, C++, जावा पढ़े हैं तो हमको C Sharp प्रोग्रामिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा. वो सिमिलर है C, C++, जावा लैंग्वेज से ही. सेकेंड लैंग्वेज इज़ विजुअल बेसिक. Visual Basic is an approachable language with a simple syntax for building type-safe object-oriented apps. Visual Basic जैसे हम लोग पढ़ा है, कैसे विजुअल बेसिक लैंग्वेज में हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं, जो वहाँ पे हम लोग विजुअल बेसिक में वेरिएबल क्रिएट करने के लिए डिम कीवर्ड का यूज़ करते थे. तो इज़ अ सिंपल लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. ओके, नेक्स्ट इज़ F Sharp. F Sharp, pronounced as F Sharp, is a cross-platform, open-source, functional programming language for .NET. It also includes object-oriented and imperative programming. F Sharp भी is a ओपन सोर्स फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. ओपन सोर्स जैसा मैंने बताया, जहाँ पे यूज़र भी मॉडिफाई कर सकते हैं उसके सिंटैक्स में. ओके. Now, what is Common Language Runtime, CLR? CLR is the basic and जैसा कि मैंने बताया था virtual machine component of the .NET framework. It is a runtime environment in the .NET framework. Runtime के समय में जो भी हमको यूज़ होगा वो हमको CLR प्रोवाइड करेगा. किसमें? .NET framework में. That runs the code and help in making the development process easier by providing various services such as remoting, thread management, type safety, memory management, robustness, etc. CLR क्या करता है? रन टाइम के समय में हेल्प करता है प्रोग्राम को प्रोसेस होने में या रन करने में. एंड प्रोवाइड मैनी सर्विसेज, जैसे मेमोरी को मैनेज करना, थ्रेड्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, ये सारे डिफरेंट टास्क हैं. बेसिकली इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ .NET प्रोग्राम रिगार्डलेस ऑफ .NET प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग अगर .NET प्रोग्राम डेवलप किए हैं तो CLR जो है वो उसको एग्जीक्यूट कराता है, चाहे वो हम लोग C# में डेवलप किए हों, जावा स्क्रिप्ट में डेवलप किए हों या C++ में डेवलप किए हों. CLR ही हमको प्रोवाइड करेगा प्रोग्राम ताकि हमारा .NET प्रोग्राम रन कर सके. इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कोड एज द कोड दैट टारगेट्स द रन टाइम इज़ नोन एज द मैनेज कोड. अभी जैसे मैंने बताया, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे .NET फ्रेमवर्क में उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैनेज कोड. And code doesn't target to runtime is known as unmanaged code. Next is the FCL, which is known as Framework Class Library. So it is a collection of reusable object-oriented class library. जैसे कि हम लोग C++ में पढ़ते थे, वहाँ पे हम लोग हेडर फाइल यूज़ करते थे, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h. तो stdio conio ये सारा क्या था? हमारा क्लास लाइब्रेरी था, जहाँ पे जो भी हम लोग इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज़ कर रहे थे उसका डेफिनेशन वहाँ पे था. तो यहाँ पे FCL भी एक तरह का क्या है? क्लास लाइब्रेरी है, जिसमें डिफरेंट फंक्शंस और मेथड्स इंटीग्रेटेड है.
इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द असेंबलीज, FCL को असेंबलीज भी बोला जाता है। इट इज़ जस्ट लाइक द हेडर फाइल इन C++ एंड पैकेजेस इन द जावा। जैसा कि मैंने बताया C++ में जिस तरह से हेडर फाइल का यूज़ होता था और जावा में जिस तरह से पैकेज का यूज़ होता था, वही वर्क यहाँ पे FCL का है। .NET framework basically is the installation of CLR and FCL into the system. Below is the overview of .NET framework. .NET framework में देखो क्या क्या यूज़ होता है। एक होता है Common Language Runtime CLR, सेकेंड इज़ द FCL फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरी। फिर CLR के अंदर डिफरेंट थिंग्स आते हैं जैसे CLI कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर, गार्बेज कलेक्टर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जिट कंपाइलर जिसे बोलते हैं। फिर कॉमन लैंग्वेज इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारा आ जाता है कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन CLS एंड कॉमन टाइप सिस्टम दैट इज CTS। ओके, so that's it for today student. Hope you have learned about the new topic that is .NET. If you have any doubt or queries, you can ask me in the comment section. Thank you.